Hello everyone. This is Dolly Jan. She basically cleared CLAT 2024 last year, and right now in NLU Sonipat. I mean, her session is going to start from July 15th of July, right? Yes. 15th of July, and session will probably start with the 1st of August. So Dolly is here to share her journey with Legal Aid Academy. At the same time, how what was her roadmap towards CLAT and how she approached to clear her exam. She is now going to share her journey with us. Yes, please, Dolly. So I started here at Legal Aid Academy in 2023, and initially it was very like I didn't have a clear idea of कहाँ शुरू करना है, कैसे करना है, क्या करना है. Shivendra sir like literally sat me down and he explained me all. अच्छा, just a second. No filter, please. मैं यही कहूँगा कि there is no script, Yes. there is no filter. So please you have to be genuine. काम नर्स जो है वो ऐसा स्क्रिप्ट लिख के आपको दिया नहीं है, है ना. ये बहुतों का भी चल रहा है, ये स्क्रिप्ट है, and you have to speak up like that. So there is nothing nothing like script written and then she is delivering. So this is completely your, आपने जो सोचा, जैसा आपको लगा, जैसे आपकी प्रिपरेशन थी, बस उतना सुनना है, उतना ही स्टूडेंट्स को और हर किसी को जानना है. Yes. जी सर ज़रूर. तो मुझे कुछ नहीं पता था जब मैंने शुरू किया क्लैट के बारे में, बट शिवेंद्र सर ने पहले मुझे बिठाया और एक्सप्लेन किया कि क्लैट कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, कौन से सेक्शंस आते हैं. एंड तो मुझे पता चला कि इसमें मेरा वीकेस्ट सेक्शन भी है, वो है मैथ्स. मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैथ्स के बारे में क्योंकि सर he has invested so much in me, but it was to no avail. I could not even, like, I got barely scored 3 out of 3 in math because that is something, that is one of my weakest section and that is also a reason कि मेरी rank इतनी नीचे आई है. See, basically, if you ask me, I was not expecting your score like, 85, 86, 87. To be very frank, guys, I was expecting you in Tier 1 college. She is once again NLU सोनीपत में अभी आप जा रहे हो. बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको टायर 1 में गेस कर रहा था. बट ओके, एंड यू हैव टू टेल मी दिस एज वेल दैट व्हाई योर स्कोर वाज बिट लो दिस ईयर, स्पेशली CLAT 2024 में. With the journey, you have to speak of this as well. Yes, sir. So again, one of the reasons I also expected myself in Tier 1 college because मैंने compare किया था कि 86 का स्कोर लास्ट ईयर कैसे गया था. एंड उस टाइम वो हिटने वाला कि ऐसा कंपटीशन कितना बड़ा है एंड पेपर कितना इजी आया है. बट जब वो चीज़ हिट हुआ देन नहीं हो रहा Tier 1, Tier 2 भी नहीं हो रहा है इस साल तो. बट वन ऑफ द रीजन्स माई रैंक वाज सो लो इज़ अगेन मैथ्स, क्योंकि मेरे बाकी सेक्शंस में स्कोर्स डिसेंट ही आए हैं, डिसेंट टू गुड आए हैं इनफैक्ट. बट अगेन that was something that caught me. मेरा strongest section were English, legal and GK. I didn't get an edge in GK because the GK section was very easy. In a way, English only. The answers were very much in the passage. The section where I could get an edge, I didn't get over there. And which could have brought me down, did bring me down. It was maths again. Logical was also a section which was really like nerve-wracking during the entire preparation. कभी score सही चाहता ही नहीं था उसमें. It was always 10 to 11 questions or 9 to 10 questions हमेशा गलत जाएंगे. And the thing is with logical, it is not at all logical. In its sense, not at all logical. We have to prepare, like we have to think like the author to answer the questions, and within 25 minutes and under that pressure while you're attempting it, it gets really hard. That is again a challenge for logical reasoning. As a faculty, I can suggest this. If you have a time frame, 20-25 minutes, and you have to solve the next 25 questions, that is exactly, a difficult job. And Dolly is absolutely right. You need to think from others' point of view. Yes. So that is again a challenge in logical reasoning section, especially in CLAT. Yes, continue. The next, legal and English. तो लीगल एंड इंग्लिश का सबसे मेन पॉइंट इसकी रीडिंग, दोनों बहुत ही रीडिंग वाले सेक्शंस हैं. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि रीडिंग जो है आपका नॉट ओनली इसमें बट आपका इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल, ये तीनों सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आई सजेस्ट एडिटोरियल्स पढ़ना इज़ अ मस्ट, क्योंकि इट हेल्प्स यू गेन कॉम्प्रीहेंशन. एंड आपको इस टाइप के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसेजेस देखोगे ना तो लाइक ऑथर की ओपिनियंस ही होते हैं वो पैसेज भी, जो आपको फिर उसके ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं. लीगल पे इट्स वेरी मच लाइक
अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता ना, सपोज आपको नहीं पता कि सेक्शन 370 क्या होता है, बट वो पैसेज में इतना सही से मेंशन होता है वो चीज़ कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है तो वो क्वेश्चन आंसर वाला चीज़ है. But ये reading is required, right? Very Reading is important, essential very because important. CLAT के लिए तो of course reading चाहिए ही चाहिए. Yeah. Okay, tell me one more thing. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हाउ मेनी मॉक शुड आई गिव बिफोर क्लैट, या फिर कब से मुझे मॉक स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ये वाले कोचिंग के साथ, दिस इज लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडस्ट्री लॉ में, तो मैं इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ, आई विल बी गेटिंग एनी ऑफ द NLU किसी भी जगह. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली मॉक एंड दैट ब्रांड, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे जाऊँ तो मिल जाएगा मुझे कुछ, तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट है, या फिर अल्टीमेटली एक मेंटर और स्टूडेंट के एफर्ट, इनसे ही चीज़ें होती हैं? यस, सो डेफिनेटली मेंटर एंड स्टूडेंट वो मैटर करता है. आप कौन से ब्रांड से, कौन से जगह से पढ़ रहे हो वो नहीं मैटर करता. बट अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है दैट इज़ मॉक्स. आप कितने मॉक्स दे रहे हो. अगर एग्ज़ाम से पहले अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को तो लगता है जितने भी दे दो उतना ही कम होता है, जब तक आप खुद सही से यू डोंट थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब मैं पेपर में अगर ये चीज़ आ गया तो मैं दे पाऊँगा, तब तक मॉक्स देते जाओ. एंड एक वो चीज़ है कि हर दिन मॉक नहीं देना है, 2-2, 3-3 दिन के गैप में मॉक देना है. बट अगर एक नंबर बोलना है तो ऐसे एटलीस्ट 100 तो दो ही. 100? यस, मैंने तो 100 के ऊपर ही दिए, तो एटलीस्ट 100 अकॉर्डिंग टू मी. कमिंग बैक टू ब्रांड, अगेन दैट इज समथिंग लाइक सोशल मीडिया ने परसेप्शन ही बना दिया ऐसा कि जब भी आप क्लैट पूले खोलोगे तो लाइक वो बड़े बड़े नाम पहले आ जाएंगे. बट दैट इज नॉट ट्रू. एट द एंड इट्स द पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दैट यू गेट फ्रॉम योर मेंटर. They have not even, I mean, attended any of the institute for that matter. एग्जैक्टली. सेल्फ प्रेम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जो निकाल लेते हैं. इट इज यो एंड द मेंटोर, एंड अगेन मोस्टली यो बट द मेंटोर एज वेल. आपको मेंटोर जो गाइड करता है ना, जब आप यू आर फीलिंग लो, या फीलिंग एग्जॉस्टेड, स्कोर सही नहीं जा रहे, गलतियाँ नहीं दिख रही है खुद से, तब मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे. Feeling low और feeling exhausted पे आते हैं. I mean, before exam, that preparation part, that mental mapping, mental preparation, sir, nerves control नहीं हो रहा है, psychologically बच्चा परेशान है, frustrated है. How to nerve those, I mean, how to nerve your control before your paper, before 15-20 days or a month is left. अब स्टूडेंट सोच रहे हैं पता नहीं मेरा स्कोर कैसा होगा, मेरा क्लाइंट होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं. मैंने उस टाइम पे बहुत सारे लोगों से मतलब काउंसिल किया है, बात की, इंक्लूडिंग यू एज वेल. तो वो एक टाइम कैसा होता है स्टूडेंट के लिए, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक वो एक टाइम, अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी आइसोलेटेड वे में प्रिपेयर करा. मैंने ज़्यादा अपने पीयर्स से उतना इंटरेक्ट नहीं करा था प्रिपरेशन के दौरान. मैंने आइसोलेशन में प्रिपेयर करे, तो मैं अपना ही बताता हूँ. खाली मेरे केस में तो टूवर्ड्स द एंड आई वाज लाइक कि अभी पेपर ले लो, मेरा हो गया प्रिपरेशन करके, अभी ले लो उसके पेपर, जो भी रिजल्ट है दैट इज़ वेरी सेकेंडरी टू मी. बिकॉज वो जो जर्नी था ना एकदम से, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours एवरी डे. जीके एक दिन नहीं करो, दूसरे दिन बैकलॉग भर जाता है, एंड वो बैकलॉग फिर कंटिन्यू होते जाते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स भी करना है, आपको इंग्लिश भी देखना है, आपको लॉजिकल तो और दिमाग ख़राब करता है आपका, स्कोर्स नहीं आते उसमें. तो वो सब देख के ना बहुत बहुत दिक्कत होता है. एंड उस टाइम पे जब आपका स्कोर्स भी गिरने लग जाता है, तो जब आपका मेंटर आके बोलता है ना कि देखो इट्स फाइन, दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. एंड मेंटर खुद बोलते हैं ना कि अभी ये काम करो, 1-2 दिन का ब्रेक लेना, दैट इज द बेस्ट थिंग. सर आई गिव मी दैट वेरी ऑफन. चलो, थैंक यू डॉली. जो फेज था वो आपका निकल गया, एंड आई बिलीव अभी जहाँ आप जा रहे हो चीज़ें और अच्छी होंगी, एंड यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. यस सर, माय बेस्ट विशेस आर ऑल विद यू. थैंक यू सो मच सर.